Okay, let's start with our another topic of drawing a diagonal scale that can measure up to 1 over 28 of an inch. So let me share the screen. So up till now, we discussed scales, reducing scale, enlarging scale, and full size scale. After then, we discussed what is diagonal scale and how can we use the diagonal scale. Then we discuss how to draw a diagonal scale that can measure 1 over 100 of an inch based on decimal system. We draw that scale and then we took measurement on over that scale. After that, we draw the scale that is based, we draw a diagonal scale that is based on fraction, and we draw a diagonal scale that can measure up till 1 over 64th of an inch. Now, in coming lecture, we will discuss how to draw a diagonal scale that can measure up till 1 over 120 of an inch. It's the procedure are all the things same, but on vertical line you have to divide in 1 over 64th of an inch. You divide this vertical line into 8 equal parts, but in 1 over 128 of an inch, divide this vertical line into 16 equal parts. You can see it is divided into 16 equal parts: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Why? Why 1 over 64 an inch? Because this is 16 part and this is 8, and their multiplication is 128. So if you want to have 1 over 8 or 1 over 8 of an inch, that can be measured on over this line. But if you want to measure 1 over 128 of an inch, so you have to divide this vertical line into 16 equal parts, and it's this scale will give you the measurement, that the least measurement 1 over 128 in that can be measured on this. So now here you can see, थोड़ा इसको देख लें कि चूंकि 1 over 28 of an inch है, तो यहाँ पे ये 16 part है. So that will be, every portion will be a multiple of 16. So 16, 32, 48, 64, 80, 96, and 112. So you have been given a dimension 83 by 128. So you have to plot this on this scale. So 83 by 128. Remember, so this is 80 and this is 96. So there is no 83. So from this 80, 81, 82, 83. So this is 83. Clear? And from this point to this point, 1 minute. Sorry. From this point to, क्यों नहीं रहा, 1 minute. From this point till this point, this is ये वाला है. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के दरमियान का जो डिस्टेंस है, दैट इज 183 by 128. और अगर आपके पास 183 by 128 है, तो अब ये या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ये 183 by 20. लेट्स से अगर आपके पास 234 by, sorry, once again, sorry, let's say 234 by 128. ठीक है ना, ये लेना है. तो आपके पास 34 by 28 को अगर आप देखें, तो ये हमारे पास क्या है, 32, 33, 34. तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, सॉरी, यहां तक का कुछ पेन में इशू है, पता नहीं क्यों मसला दे रहा है.
यहां तक का। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 234/128। क्लियर? यस सर। एनी इशू, एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, अब आते हैं इस पे। ये तो था हमारे पास। इस पे आ जाते हैं वापस दोबारा, इसको देखते हैं। अगर अगर आपको अभी कहा गया हो कि आप एक डायगोनल स्केल बनाएं बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम, क्वेश्चन अगर ये हो कि आपके पास डायगोनल स्केल और वो हो डेसिमल बेस, दैट कैन measure up to 1/1000 ऑफ एन इंच। तो क्या तरीकाकार होगा, कोई बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है? सर मे बी 10 × 100 सर, उस तरह से सर कर। नहीं, कोई मुझे सीक्वेंस से बता सकता है, वो मुझे बताए और मैं इधर ड्रॉ करता जाऊं रफली। सर वर्टिकली से 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे सर, नहीं हॉरिजॉन्टली 100 में। नहीं, सीक्वेंस से बताएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 इंच की 1 लाइन इंच की लाइन लगाएंगे, लगाएंगे ठीक है ना? इसको कितने हिस्से में डिवाइड करेंगे? सर। 10। 10th हिस्से में। सर इसमें तो सबसे पहले हम रिड्यूस करेंगे सर। हाँ, सबसे पहले तो रिड्यूस करेंगे 1000 को उसमें। किस तरह रिड्यूस करेंगे? सर आपने पहले कह दिया कि एक इनलार्जिंग होता है, एक रिड्यूस होता है, तीसरा हमारे पास फुल साइज है नहीं, उस पे अभी हम नहीं आए, उस पे अभी हम नहीं आए, हम इसको एक्चुअल साइज पे बनाते हैं, उस पे अभी मैंने बात नहीं की बच्चे। ओके सर। हाँ जी, क्या करेंगे? वैसे वर्टिकल ये लाइन ड्रा करेंगे सर। इस तरह आता नहीं है, इसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 10 हिस्सों में। और जो वर्टिकल है उसको हमने 100 100। पार्ट डिवाइड करना है। कितने में डिवाइड करना है, 100 में कि 50 में? सर 100 में। 100 पे डिवाइड करना है, 100 से करना है, ठीक है ना? तो अब ये आपके पास काफी बारीक आएगा, इसलिए ये हम इसको अभी लेते भी नहीं है इस तरह, ठीक है ना? तो वही तरीका आपने अप्लाई करना है, ठीक है? और वही आपने इसी तरह स्केल बना लेना है। तो वो जो स्केल हमारे पास बनेगा इस तरह, ये तो रफली है, वो होगा 1/1000 ऑफ एन इंच। और उस पे आप फिर फर्दर मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये भी है नहीं, इसमें दिया नहीं है, तो उसको हम कंसिडर अभी नहीं करते। यहां तक अगर क्लियर है, तो अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे कि हाउ यू विल ड्रॉ द स्केल, हाउ टू ड्रॉ diagonal scale either using reducing scale or enlarging scale, ठीक है ना? So for that I have to open the book, so मुझे बुक ओपन करने दें। Where is the book? This is the book. ये बुक आपको विजिबल है? सर यस सर। अच्छा, इसमें हम आते हैं स्केल के चैप्टर पे। स्केल चैप्टर, शीट लेआउट, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, शीट लेआउट एंड अदर थिंग्स। ये स्केल्स तो ये है।
नहीं ये भी नहीं है, ये चैप्टर भी नहीं है, नीचे ये सारे हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में ये पढ़ेंगे। अच्छा ये है स्केल, ये भी, इसको भी, ये यही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है ना। हम आते हैं एक रियल प्रॉब्लम पे, रियल क्वेश्चन पे, और उसको फिर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ क्या है। अच्छा अच्छा, इस प्रॉब्लम को देखें, इसको थोड़ा समझें, फिर उसके बाद जो है वो आपको मैं असाइनमेंट दूंगा कि आपने किस तरह बनाना है। यहाँ पे आपको दिया गया है प्रॉब्लम 4.4-6। इसमें कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल ऑफ 3:200। सो 3:200 इज विच टाइप ऑफ स्केल? reducing. रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है ना। IE1:60, ये और ये एक ही चीज है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि एक डायगोनल स्केल बनाएं 3:200 पे, ठीक है ना, शोइंग मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड अप मैयर अप टिल 6 मीटर। अब 6 मीटर कितना ज्यादा डिस्टेंस है? आपको 6 मीटर का फिजिकली अंदाजा है? 6 मीटर कितना होता है? So 24 feet. अच्छा, तो अगर आपको अंदाजा है तो आप नोट कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ये आप A4 पेज पे नहीं, अगर एक्चुअल बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। क्लियर? Yes, sir. तो ये कह रहा है कि एक ऐसा डायगोनल स्केल बनाएं जो कि हो 3:200 पे, और जो कि मीटर को भी मेजर कर सके, डेसीमीटर को भी मेजर कर सके, और सेंटीमीटर को भी, और मैक्सिमम 6 मीटर तक मेजर कर सके। तो अब आपने क्या करना है, पहले तो आपको ये जो स्केल दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपने लेंथ ऑफ स्केल क्या होगी, मतलब जो आप ड्रॉ करेंगे वो लेंथ ऑफ स्केल किस तरह निकलती है? वो निकलती है आपके पास जो स्केल की वैल्यू दी हुई है जो 3/200 है, इनटू the length which you are maximum length that you are going to measure। तो जब 3/200 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो आपके पास कितने सेंटीमीटर निकल आएंगे? 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसको देखें, अब आपने क्या करना है, एक एक स्टेप को भी पढ़ें ताकि आपको समझ भी आए, और आप जो है वो इधर ड्रॉ भी करते जाएं, ठीक है ना। समझ नहीं आती आप लोगों को मुझे बताते जाएं, ठीक है ना। ये नहीं है, एक मिनट, इसको अच्छा, कहाँ है बुक? ये है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है आपने? फुट लेके 9 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ करनी, ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। ये इसको स्टेप को भी पढ़ते जाएं साथ साथ में, तो आपको और भी क्लियर समझ आ जाएंगी। ड्रॉ अ लाइन ए बी 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, दिस लाइन ए टू बी, दैट विल बी 9 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ आ गई आपको? यस सर। अच्छा, अब 9 सेंटीमीटर तो है, और इसको 9 को आपने 6 इक्वल हिस्सों में तकसीम करना है। 6 इक्वल हिस्सों में क्यों तकसीम करना है? एनीवन हु कैन आंसर दिस? सर क्योंकि टोटल सर वो 6 मीटर है इस वजह से। एग्जैक्टली, क्योंकि ये 6 मीटर तक मेजर करना है, तो उसको जब हम 6 हिस्सों में तकसीम करेंगे, जिस तरह यहाँ पे तकसीम किया गया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इसका ये हर एक हिस्सा जो है ये 1 मीटर है, मींस 1 मीटर, 2 3 4 5 6। तो हमने इसको, मैं इधर ड्रॉ भी कर देता हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इस रेस्ट को मैं डिलीट करता हूं, चेक करने दे कि ये नोट भी, नोटबुक भी जो है ये मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूं, तो ये इरेजर ये है। एक मिनट,
ठीक, ये 6 हिस्सों में, और इसका हर एक हिस्सा कितना होगा? 1 मीटर। ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा, ठीक है ना? सही है। टोटल ये लाइन कितनी लेंथ की थी? 6 मीटर। 6 मीटर नहीं, यहां से आपने ये जो स्केल को उस लेंथ से जब मल्टीप्लाई किया तो आपने 9 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, ए बी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है ना? और आपने इसको 6 हिस्सों में डिवाइड किया। जब 9 सेंटीमीटर को कैलकुलेटर से डिवाइड करें 6 से, तो जो वैल्यू आती है उतना आपने प्रकार ओपन करना है और एक पॉइंट पे रख के इधर मार्क करना है। फिर इसी प्रकार को हिलाए बगैर इधर प्रकार को रखना है, कंपास को, और फिर एंड सो ऑन यू विल डिवाइड दिस लाइन ऑफ 9 सेंटीमीटर इनटू 6 इक्वल पार्ट। नाउ why we divided this 6 into why this divided 9 into 6 equal part? Because we have to measure the maximum 6 meter distance. Clear? यस सर। यस अच्छा, इसके बाद अब आपको क्या कहा गया है कि इस पे आप डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर मेजर कर सकें, ठीक है ना? तो इसको देखें, ये हमारे पास ये कितना है यहां से यहां तक? ये मुझे जरा एक दफा रिपीट कर दे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये कितना मेजर कर रहा है? 1 मीटर। 1 मीटर। सिमिलरली ये 1 मीटर, ठीक है ना? एंड सो ऑन। अब ये तो मीटर मेजर कर रहा है, अब डेसीमीटर कितने के बराबर है? 10 रेज़ टू पावर क्या? यो मिनट, एक मिनट आप होल्ड करें। अच्छा, मैं क्या कह रहा था? अच्छा, डेसीमीटर 10 रेज़ टू पावर -1 के बराबर है, ठीक है? ये तो सब पता है ना आपको। सेंटी किस चीज के बराबर है? सेंटीमीटर 10 raised to power -2. 10 रेज़ टू पावर -2, ठीक है ना? अच्छा, देखें, अब आपने करना क्या है कि ये जो आपके पास ये डिस्टेंस आता है, ये वाला, इस मीटर, इसको जब आप 10 फर्दर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये ये एक डिस्टेंस कितना होगा? 0.1 मीटर हो जाएगा ना? Yes, sir. तो जो कि 10 रेज़ टू पावर। तो कहने का मकसद ये था कि जब आप इस लाइन को 10 में डिवाइड करेंगे तो ये पोर्शन यहाँ पे यहाँ पे जब आपने इसको 10 पे डिवाइड किया तो इसका हर एक हिस्सा 0.1 मीटर है। तो अब ये वाला पोर्शन जो है ये डेसीमीटर को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक? ओके सर। हाँ, फिर आपने इधर फिर नीचे देखें एग्जांपल को, स्टेप को देखें। स्टेप में क्या कहता है? स्टेप में वो कहता है कि डिवाइड द फर्स्ट पार्ट A0 यहां से यहां तक है, जो अभी मैंने आपको बताया, A0, इसको डिवाइड करें 10 इक्वल डिवीजन में, ईच शोइंग अ डेसीमीटर और 0.1 मीटर। यहां तक क्लियर? ये पहले 2 स्टेप्स की समझ आ गई? यस सर। अच्छा, the third one is at point A erect a perpendicular and step off along it 10 equal division of any length ending at D। ये A से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है ना? और उसको 10, जितनी लेंथ की आप लेते हैं उसको 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक है ना? सही है? एंडिंग एट डी, जो डी पे खत्म होती हो, मतलब ए से डी तक ए से एक लाइन लगाएं जो कि एंड अगर होती है तो वो पॉइंट डी है, और उसको 10 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दें। यहां तक आपने डिवाइड कर दिया, फिर इस जो आपने ए डी लाइन लगाई इसको भी 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें, जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया था।
erect perpendicular at meter division 0 1 2 3 4, जिस तरह यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, वही कह रहा है कि ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू डिवीजन पॉइंट ऑन एडी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, ये 1 वाली लाइन ड्रा करें, 2 वाली लाइन ड्रा करें, 3 4, और सिमिलरली यहाँ पे 1 से 0 को मिलाएं, 2 से 0 को, तो आपके पास ये स्केल बन जाएगा। ये स्केल बनाना समझ आ गई आपको इसकी? यस सर। अच्छा, अब हम आते हैं कि किस तरह हम इस पे मेजरमेंट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसको नीचे थोड़ा पढ़ लें, ये आसान है। जैसे कि अब इस पे मैं मेजरमेंट लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास है 4.76 मीटर, सही है ना। तो ये 4 क्या है, 4 में कहां से लूंगा, 0 से ये 4 तक, तो ये तो मीटर है ना। अब 0.76 की मैं बात करता हूं, तो 0.7 क्या है, ये 0.6 है और ये 0.7 है ना, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये जो मैं नीली ड्रॉ कर रहा हूं, ये कितनी होगी, 4.76 मीटर, ठीक है ना। अब 4.76 मीटर जो है वो काफी बड़ा डिस्टेंस है, लेकिन चूंकि रिड्यूसिंग स्केल पे बनाया हुआ है, तो ये आपके पास ये लाइन रिप्रेजेंट करी है 4.76। अब अगर आप इसकी एक्चुअल लेंथ लें, फुट से नापें कि ये कितने सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है ना, और उसको मल्टीप्लाई कर दें किस वैल्यू से, बताएं ना बच्चे। सर 9 से करेंगे? 9 से क्यों करेंगे, 6 से सर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से भी नहीं, हाँ 6 से नहीं, 6 से नहीं करेंगे, इसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जो स्केल है ना, स्केल, ये रिड्यूसिंग स्केल में देखें ये 3/200 है ना, 3/200। अब 3 का क्या मतलब कि ऑन ड्राइंग, ठीक है ना, और 200 इज एक्चुअल लेंथ, ठीक है ना। तो इसके जो 3 यूनिट्स होंगे, मतलब 3, वो एक्चुअली 200 हैं। तो इसको जितने भी, ये जितनी भी लेंथ आती है उसको 3 से डिवाइड करें, जो वैल्यू आएगी उसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो उतना डिस्टेंस एक्चुअल में होगा, उतने मीटर का। अच्छा, मुझे पहले इसको तो रहने दें, सबसे पहले मुझे बताएं कि इसकी समझ आ गई आपको? यस सर। अच्छा, लेट्स सी इन अदर एग्जांपल। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से में, क्योंकि आते हैं नहीं आते वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको एग्जाम वाइज क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस तरह होते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल ऑफ RF 1/4000 टू शो मीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर 500 मीटर। अब इसके लिए आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ स्केल क्या होगी, आप जब इस 1/4000 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, तो आपके पास क्या आएगा, 12.5 सेंटीमीटर। तो आपने 12.5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है, ठीक है ना। जब आप 12.5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा देंगे, तो उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, बताएं ना बच्चे। मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आ रही। 10 में? नहीं, 10 में नहीं, 5 अच्छा, equal में सर। 5 इक्वल पार्ट्स में। देखें, पहला स्टेप क्या था, मैंने आपको कहा, फिर भी आपको समझ नहीं आती, आप इसी प्रॉब्लम को एक दफा स्टेप वाइज खुद बना के देखें, आपको समझ आएगी, ठीक है ना। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि जो आपको RF की वैल्यू दी होती है, ठीक है ना, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर करना होता है, तो आपके पास जो आप लेंथ ड्रॉ कर रहे हैं स्केल के लिए, वो आपके पास किस चीज के बराबर है, वो बराबर है दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय
total distance that can be measured. Length देखेंगे नीचे दिया भी हुआ है, length of scale is equal to 1 over 4000 into 500 which is equal to 1 over 8 meter. और अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 12.5 सेंटीमीटर है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है 12.5 सेंटीमीटर की, 12.5 सेंटीमीटर की। जब वो लाइन ड्रॉ कर लें तो उसके बाद आप देखें इधर कि आप कितना मैयर करना चाहते हैं, 500 मीटर मैयर करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसको 5 पे डिवाइड करूं, 500 है ना, तो इसको मैं 5 पे डिवाइड करूं इक्वल पार्ट में, 12.5 सेंटीमीटर को 5 पे डिवाइड करें कैलकुलेटर से, जो वैल्यू आए प्रकार को इतना ओपन करें, 1 2 3 4 5 प्रकार को इतना ओपन करें और इसको डिवाइड कर दें। अब ये मेरे पास ये हर एक बक्सा जो है वो या हर एक सेगमेंट जो है वो 100 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर यहां तक? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर प्रकार को कितना खोलेंगे सर? हाँ, कितना खोलेंगे कंपास को सर? कंपास को कितना ओपन करेंगे? तो ये जो 12.5 सेंटीमीटर है ना, इसको आप 5 हिस्सों में तकसीम करना चाह रहे हैं। जब इसको आप 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 12.5 तकसीम 5, तो ये 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यस सर। तो 2.5 सेंटीमीटर प्रकार को ओपन करें। ये लेट से आपके पास 12.5 सेंटीमीटर की लाइन है, तो आपने प्रकार का एक एंड इधर रखा और 2.5 सेंटीमीटर इसको ओपन किया, तो ये आपके पास, फिर प्रकार के उसी एक एंड को इधर रखें और इसी तरह 2.5 सेंटीमीटर इस तरह काटे, तो आपके पास ये कटिंग पॉइंट आ जाएगी। ठीक है ना? तो इसी तरह आपकी एक लाइन जितने नंबर पे आप डिवाइड करना चाहते हैं इस तरह करते हैं। क्लियर? थैंक यू सर। अच्छा, ये आपको 5 हिस्सों में जब आप डिवाइड करते हैं तो इसका हर एक हिस्सा जो है वो 100 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। आगे देख लेते हैं इसको क्या कहता है वो। अच्छा, फिर अगर आपने, चूंकि यहां पे अगर आपको कहा गया हुआ है कि लॉन्ग इनफ टू मैयर अप टू 500 मीटर, ठीक है ना, 500 मीटर तक मैयर करे, ठीक है ना, तो यहां तक तो ये ठीक है कि ये मतलब अगर आप कहते हैं, और अगर आप इसको कहते हैं कि ये 500 मीटर तक ये 100 है, 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 लेकिन व्हाट अबाउट कि इसको आपने फर्दर डिवाइड नहीं किया। अगर आप लेट से 97 मीटर को मैयर करना चाहते हैं, तो आपके पास यहां पे कुछ वैल्यू होनी चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए एक मिनट, ये देखें, इसको उसने फर्दर फिर 10-10 हिस्से, मतलब इसको फर्दर 10 डिवीजन में किया हुआ है, और ये 0 से ये डिवीजन जो है ये 10 मीटर के बराबर है। 20, मैं थोड़ा इसको इधर कर दूं, सिंपल वर्ड में कहने का मकसद ये है कि यहां से यहां तक तो 100 मीटर है ना, और इसने इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है 10 हिस्सों में, ठीक है ना, तो इसका हर एक हिस्सा जो है वो 10 है। मींस इधर से इधर तक का डिस्टेंस 10 मीटर है, इधर से इधर तक का डिस्टेंस 50 मीटर है, और इधर से इधर का डिस्टेंस 100 मीटर है। तो ये आपके यहां तक हो गई। फिर इसने वर्टिकली भी इसको 10 पे डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास लेट से कोई रीडिंग है, फॉर एग्जांपल ये ए बी है, तो ये कितनी होगी? ये अगर देखते हैं, ये 50 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 74, और यहां तक, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 74 हो गया, और यहां 100 200 300 374, ठीक है ना, मीटर। तो ये जो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ये हमें क्या शो कर रहा है? ये हमें 374 मीटर डिस्टेंस शो कर रहा है। तो आपने एक ऐसा स्केल बनाया जिसको आपने 4000 टाइम्स रिड्यूस करके बनाया, ठीक है ना। क्लियर है? यस सर। बच्चे सही बताएं, अगर नहीं समझ आती मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं।
ये जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दी प्लीज। इसी एग्जांपल को, यस सर। अच्छा इस एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन करता हूं दोबारा। मुझे ये थोड़ा, ये पेज नंबर 70 है ना, मैं इस बुक को लीव करता हूं और मैं इसको दोबारा ओपन करता हूं। 74 पेज पे जाते हैं ताकि कुछ लिखा ना हो तो मैं आपको समझा दूं। एग्जांपल क्या थी, ये तो हम एक्सरसाइज पे आ गए थोड़ा ऊपर ऊपर। ये वाली प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि डायगोनल स्केल बनाए जिसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या जो स्केल है वो 1/4000 है। 1/4000 मींस 1/4000, सो इट इज अ रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं डायगोनल स्केल बनाए इतने फैक्टर का, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का, जो कि हमें शो करे मीटर्स एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर 500 मीटर। एक ऐसा स्केल बनाए डायगोनल स्केल जिसका फैक्टर ये हो रिड्यूसिंग स्केल फैक्टर, ठीक है ना, और जो कि 500 मैक्सिमम 500 0 से लेके 500 मीटर तक इसको मेजरमेंट कर सके। तो उसके लिए पहला स्टेप जो है, ये नीचे आपको ये चीजें नहीं दी गई होंगी, क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा, ठीक है ना। करना क्या है आपने, क्वेश्चन इस तरह होगा, करना ये है कि आपने सबसे पहले लेंथ ऑफ स्केल जो कि आप बनाना चाह रहे हैं वो ड्रॉ करेंगे। वो ड्रॉ किस तरह करेंगे, उसके लिए हमारे पास पहला स्टेप ये है कि फार्मूला है लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू जो भी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड। सो 1/4000 मल्टीप्लाई बाय 500 विल गिव यू 1/8 मीटर एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। आपके पास 12.5 सेंटीमीटर आया। आपने क्या करना है, आपने 12.5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, ठीक है ना। आपने 12.5 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी, उसके बाद आप देखते हैं कि आप कितना मेजर कर रहे हैं, 500 मीटर। तो अगर मैं इस 12.5 को 5 हिस्सों में तकसीम करता हूं तो जो मेरे पास आता है तो मैं प्रकार से इसको 5 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूं, ठीक है ना। अब तकसीम करने के बाद मेरे पास ये डिस्टेंस भी, ये इधर से इधर तक का ये 100 मीटर रिप्रेजेंट कर रही है, ये 100 मीटर कर रही है, ये 100, ये 100 और ये 100। अब 100 तक की तो हद तक ठीक है, लेकिन अगर आपको 57 मीटर का आ गया हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ये जिस तरह इधर देख लें कि ये इसने 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया, हर एक हिस्सा इसका, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी और ये भी, ये 100 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस 100 को इसने फर्दर डिवाइड किया है 10 हिस्सों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसका ये हिस्सा जो है 0 से इधर तक का ये 10 मीटर है, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है ना। और सिमिलरली जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ये तो 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन 100 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने इस वर्टिकल को भी 10 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो आपको ये 100 तक मेजर करता है। अब इस पे अगर आपने लेट से 57 है, 57 को मेजर करना है, तो आपको पता है कि ये पॉइंट 50 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है ये कितना है, ये है 57 मीटर, ठीक है ना। और अगर आपको कहा है कि 121 मीटर, तो अब आप देखें कि पहले तो 21 को लें, 21 कितना होगा, ये 10 20, ये 21, ये 21 यहां से यहां तक है, और ये 100 है, तो ये यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस जो आपने मेजर किया है ये होगा 121 मीटर। क्लियर? यस सर। आई होप कि आपको अब समझ आ रही है। यस सर। यस सर। अच्छा, लास्ट थिंग, और उसके बाद जो है वो फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, ठीक है ना। अब इसको देख लें, ड्रॉ अ डायगोनल स्केल ऑफ 1/2.5 showing centimeter
n millimeter and long enough to measure 20 centimeter. ठीक है ना? तो दिस इज वेरी सिंपल वन. आपने 20 सेंटीमीटर मैक्सिमम कहा गया है और आपको स्केल दिया हुआ है. ये कौन सा स्केल है, रिड्यूसिंग के इनलार्जिंग? Yes, sir. सर रिड्यूसिंग ये कौन सा स्केल है 1:2.5? रिड्यूसिंग है सर. क्योंकि ये हमारे रिड्यूसिंग स्केल है. ठीक है ना? अब आपने पहला स्टेप जो करना है जी, अब आपका पहला जो स्टेप है वो आपने लेंथ ऑफ स्केल निकालना है. और मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेंथ ऑफ स्केल हमारे पास बराबर है दिस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन विच इज 1/2.5 and multiply by the distance, the maximum distance which you want to measure. So 1/2.5 multiplied by 20 which give you 8 centimeter. अब आपने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है ना? तो आप 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं तो अब आप इस पे कितना मेजर करना चाहते हैं जी? बताए ना. Sir, 20 centimeter. 20 सेंटीमीटर. वेट अ मिनट, माउस की पैड काम छोड़ दिए क्या वजह है? चलो इसको इधर देख लेते हैं. स्टिल अच्छा, ये पेन में कर दूं. अच्छा, अब आपके पास लेंथ ऑफ स्केल क्या थी? लेंथ ऑफ स्केल विच इज इक्वल टू 1/2.5 मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर, जिससे आपके पास कितना आया? 8 सेंटीमीटर. तो अब आपने 8 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है. ठीक है, ये टोटल 8 सेंटीमीटर की लाइन. अब आप कितना मेजर करना चाह रहे हैं? 20 करना चाह रहे हैं. तो इस 20 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 4 पे तो क्या आ जाएगा? 5. तो 5 मुझे मतलब 5 सेगमेंट चाहिए. ठीक है ना? तो अब इस 8 सेंटीमीटर को आप डिवाइड करें कैलकुलेटर से 5 पे, तो जितना आपके पास आता है आप उसको प्रकार से 5 सेगमेंट में डिवाइड कर दें. 1 2 3 4 5. क्लियर? अब ये एक सेगमेंट आपको कितना मेजर कर रहा है? 5 सेंटीमीटर. ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5. यहां तक क्लियर? यस सर. देखें इसको मैं इसके साथ दोबारा ये पढ़ देता हूं. ड्रॉ अ लाइन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. अच्छा, इसने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है. आप 5 पे करना चाहते हैं तो आपके पास 5 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा? हर एक 5 सेंटीमीटर का आएगा. अच्छा, इसने 4 पे डिवाइड किया. अच्छा, ड्रॉ अ लाइन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. जब इस 8 सेंटीमीटर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक कितना होगा? 2-2 सेंटीमीटर पे. आप इसको सिंपल फुट से भी डिवाइड कर सकते हैं. नाउ ये सेगमेंट जो है, एक सेगमेंट इसका, ये एक्चुअली कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर. ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5. टोटल 20 मेजर कर रहा है. ठीक है ना? अब जब ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको अगर आप 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो ये हर एक हिस्सा इसका कितना हो जाएगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना होगा? ये मुझे थोड़ा बताएं. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का कितना होगा डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना होगा? यार इतना भी आपको अभी नहीं पता कि ये कितना होगा. ये टोटल 5 रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया तो ये 1 सेंटीमीटर होगा ना. यहां से यहां तक का ये टोटल 2 सेंटीमीटर होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा. अच्छा, फिर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मुझे इधर मिलीमीटर चाहिए. ठीक है ना? ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर आता है. ठीक है ना? तो अब अगर आपको
मैं इसको दोबारा जूम आउट कर दूं और मुझे कहा गया कि 13.4 सेंटीमीटर इस पर रिप्रेजेंट करें। तो अब मुझे पता है कि यहां से लेकर यहां तक का, इस सिरे के इस पॉइंट तक, ये तो 10 सेंटीमीटर है। ये क्या है, 1 2 3। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। 4 के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डी डिस्टेंस, दैट इज 13.4 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। Yes, sir. Okay, let me turn off the recording and then I will ask some questions from you. Thank you.